بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم فرمانے وال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ایسا لمحہ جب ایک باپ کے سامنے اس کا سب سے محبوب بیٹا کھڑا ہو، ایک طرف محبت کا سمندر ہو اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کا حکم، تو انسان کے ایمان کی حقیقت سامنے آتی ہے۔ دنیا کی تاریخ میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ سبق دے دیا کہ اللہ کی محبت کے سامنے دنیا کی ہر محبت چھوٹی ہے۔ یہ واقعہ ایک ایسے عظیم نبی کا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ وہ تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن کی زندگی ایمان، صبر، قربانی اور اللہ پر مکمل بھروسے کی روشن مثال ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزاری۔ جب وہ اپنی قوم کے سامنے توحید کا پیغام لے کر آئے تو لوگوں نے مخالفت کی مذاق اڑایا اور انہیں تکلیفیں پہنچائیں، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم کبھی نہ ڈگمگائے۔ ان کا دل صرف اپنے رب کی رضا چاہتا تھا۔ وقت گزرتا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ایک نیک اولاد کی دعا مانگی۔ بڑھاپے کی عمر میں جب امیدیں کم ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے انہیں ایک بیٹے کی خوشخبری عطا فرمائی۔ یہ بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام دنیا میں تشریف لی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں خوشی کی ایک نئی روشنی پھیل گئی۔ ایک طویل انتظار کے بعد ملنے والی یہ نعمت ان کے دل کے بہت قریب تھی۔ وہ اپنے بیٹے کو دیکھتے، اس کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھتے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی عام بچوں کی طرح اپنے والد سے محبت کرتے تھے۔ وہ اپنے والد کے ساتھ وقت گزارتے، ان کی بات سنتے اور ان کی خدمت کرتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں بھی اللہ کی اطاعت اور نیکی کا راستہ سکھایا، مگر اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو آزمائشوں کے ذریعے بلند درجات عطا فرماتا ہے۔ ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام آرام فرما رہے تھے کہ انہوں نے خواب دیکھا۔ خواب میں انہیں حکم دیا گیا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کریں۔ یہ خواب کوئی عام خواب نہیں تھا۔ انبیاء کرام علیہم السلام کے خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کا حصہ ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ صبح ہوئی تو دل پر ایک عجیب کیفیت طاری تھی۔ ایک طرف اللہ کا حکم تھا اور دوسری طرف ایک باپ کی محبت۔ ایک طرف برسوں کی دعا کے بعد ملنے وال بیٹا تھا اور دوسری طرف اپنے رب کی رضا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کبھی اپنی خواہش کو اللہ کے حکم پر مقدم نہیں کیا تھا۔ انہوں نے فوراً سمجھ لیا کہ یہ ایک بہت بڑا امتحان ہے۔ انہوں نے اپنے دل کو مضبوط کیا اور اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ رکھا۔ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس گئے۔ ان کے چہرے پر محبت بھی تھی اور ایک عظیم فیصلے کا سکون بھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا، اے میرے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، پس تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ یہ الفاظ ایک باپ کے لیے کتنے مشکل ہوں گے، اس کا اندازہ لگانا بھی آسان نہیں۔ مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بھی اس امتحان میں شریک کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ایمان صرف زبان سے نہیں بلکہ دل کے یقین سے ہوتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد کی طرف دیکھا۔ ان کے دل میں خوف نہیں تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جس رب نے انہیں زندگی دی ہے، اس کا حکم سب سے بڑھ کر ہے۔ انہوں نے نہایت ادب اور فرمانبرداری سے جواب دیا، اے میرے والد محترم، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے وہ کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہ جواب سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل مزید مضبوط ہو گیا۔ ایک باپ نے ایسا بیٹا پایا تھا جو اللہ کی رضا کے لیے خود کو پیش کرنے کے لیے تیار تھا۔ پھر وہ وقت آیا جس کا تصور بھی انسان کے دل کو حال دیتا ہے۔ باپ اور بیٹا اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکائے ہوئے تھے۔ دونوں جانتے تھے کہ یہ دنیا کی محبت کا نہیں بلکہ ایمان کی کامیابی کا امتحان ہے، لیکن ابھی اس عظیم امتحان کا آخری مرحلہ باقی تھا اور آنے والے لمحوں میں پوری دنیا دیکھنے والی تھی کہ اللہ کے محبوب بندے کس طرح اپنی محبتوں کو بھی اللہ کی محبت پر قربان کر دیتے ہیں۔ پچھلے باب میں ہم نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم امتحان دیا گیا۔ برسوں کی دعا کے بعد ملنے والے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں خواب کے ذریعے حکم مال کے انہیں اللہ کی راہ میں قربان کیا جائے۔ ایک باپ کے لیے یہ لمحہ کتنا سخت تھا، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی رضا کو سب سے بلند جانا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی اپنے والد کے ساتھ اللہ کے حکم کے سامنے فرمانبرداری کا راستہ اختیار کیا۔ اب وہ وقت قریب آ رہا تھا جسے تاریخ ہمیشہ کے لیے یاد رکھنے والی
थी, सुबह की नरम रोशनी फैल रही थी। फिजा में एक अजीब सुकून था, मगर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दिल में एक ऐसा राज था जिसका बोझ सिर्फ वो और उनका रब जानता था। वो अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को देखते तो मोहब्बत से दिल भर आता। यही वो बेटा था जिसके लिए उन्होंने अल्लाह से दुआ की थी। यही वो बेटा था जिसकी आमद ने उनके घर को खुशियों से भर दिया था। मगर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जानते थे कि नेमत देने वाला अल्लाह है, और अगर वही रब किसी चीज का इम्तिहान ले तो बंदे का काम सिर्फ इताअत करना है। यही ईमान की हकीकत है। इंसान अक्सर दुनिया की चीजों से मोहब्बत करने लगता है, लेकिन अल्लाह ताला अपने बंदों को याद दिलाता है कि असल मालिक वही है। वो अलग माल, इज्जत, जिंदगी और हर नेमत अल्लाह की अता है। जब बंदा अल्लाह की मोहब्बत को सबसे मुकद्दम कर लेता है तो दुनिया की कोई चीज इसे अल्लाह के हुक्म से दूर नहीं कर सकती। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर रवाना हुए। रास्ते में बाप और बेटे के दरमियान मोहब्बत भरी गुफ्तगू होती रही। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने वालिद के साथ पूरी फरमाबरदारी से चल रहे थे। वो जानते थे कि उनके वालिद अल्लाह के नबी है और जो हुक्म उन्हें माल है वो अल्लाह की तरफ से है। रास्ते की खामोशी में भी एक अजीम सबक छुपा हुआ था। एक तरफ बाप का दिल था जो अपने बेटे के लिए मोहब्बत से भरा हुआ था, और दूसरी तरफ ईमान था जो अल्लाह के हुक्म के सामने झुक चुका था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़हन में अपनी पूरी जिंदगी के मनाजिर आ रहे थे। वो वक्त याद आ रहा था जब उन्होंने अपने कौम को बुत परस्ती छोड़ने और एक अल्लाह की इबादत करने की दावत दी थी। वो वक्त याद आ रहा था जब उन्हें आग में डाल गया, मगर अल्लाह ताला ने आग को हुक्म दिया कि वो उनके लिए ठंडी और सालमती वाली बन जाए। वो जानते थे कि जिस अल्लाह ने उन्हें हर मुश्किल में संभाल, वो आज भी उनके साथ है। जब वो मकाम करीब आया जहां ये इम्तिहान पूरा होना था, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से मोहब्बत भरी नजर से देखा। उन्होंने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को बताया कि अल्लाह का हुक्म पूरा करना है। बेटे ने भी पूरे यकीन के साथ अपने आप को लिल्लाह के हवाले कर दिया। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से अर्ज किया, ए मेरे वालिद, अगर आपको अल्लाह का हुक्म पूरा करना है तो मेरी एक दरख्वास्त है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मोहब्बत से पूछा, बेटे बताओ तुम क्या चाहते हो? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, जब आप अल्लाह का हुक्म पूरा करें तो मुझे मजबूती से बांध दीजिए, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि इंसानी फितरी कैफियत में मेरे हाथ जिस्म हरकत करे और आपके लिए अल्लाह के हुक्म को पूरा करना मुश्किल हो जाए। और मेरे कपड़े मेरी वालिदा को दे दीजिए ताकि उन्हें मेरे बेटे होने की याद रहे। ये अल्फाज सुनकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए। ये सिर्फ एक बेटे की कुर्बानी नहीं थी, बल्कि एक ऐसे खानदान का ईमान था जिसने अल्लाह की रजा को अपनी ख्वाहिशात पर तरजीह दी। फिर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद को तसल्ली देते हुए कहा, मेरे वालिद मोहतरम, अल्लाह के फैसले पर सब्र कीजिए। अल्लाह अपने नेक बंदों के अमल को ज़ाय नहीं करता। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को पेशानी के बिल लुटाया। ये लम्हा जमीन व आसमान के दरमियान एक अजीम गवाही बन गया। फरिश्ते भी इस अजीम इताअत को देख रहे थे। शैतान ने कोशिश की कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दिल में वसवसा डाले। इसने चाहा कि वो सोचें ये कैसे मुमकिन है कि एक बाप अपने बेटे को कुर्बान करे, लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ईमान मजबूत था। उन्होंने वसवसों को रद्द कर दिया और अल्लाह की रजा के रास्ते पर कायम रहे। यही वजह है कि हज के मौके पर शैतान को कंकरियां मारने की यादगार भी इसी वाक़ये से जड़ी हुई है, क्योंकि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म के सामने आने वाली हर रुकावट को ईमान के साथ दूर किया। अब वो लम्हा आ पहुंचा जिसका जिक्र हमेशा के लिए कुरान की आयत में महफूज होने वाला था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म को पूरा करने के लिए इरादा कर लिया, मगर जैसे ही वो अजीम लम्हा आया, कुदरत इलाही ने ऐसा फैसला फरमाया जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। अगले बाब में मालूम होगा कि अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इस अजीम कुर्बानी को कैसे कबूल फरमाया और किस तरह एक इम्तिहान क़यामत तक के लिए संत बन गया। पिछले बाब में हमने देखा कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म के सामने मुकम्मल तौर पर झुक गए। एक बाप ने अपनी सबसे कीमती मोहब्बत अल्लाह की रजा के लिए पेश कर दी और एक बेटे ने अपने रब के हुक्म को अपनी जिंदगी पर मुकद्दम कर दिया। अब वो अजीम लम्हा पहुंचा था जिसने क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए ईमान, सब्र और कुर्बानी की मिसाल कायम कर दीनी थी। जमीन खामोश थी, आसमान गवाह था
और फरिश्ते इस अजीम इताअत को देख रहे थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह के हुक्म की तामील के लिए पेश किया तो इनके दिल में कोई शक न था। उन्हें मुकम्मल यकीन था कि अल्लाह का हर फैसला हिकमत से भरपूर होता है। ये वो लम्हा था जब दुनिया की नज़र में एक नामुमकिन काम सामने था, मगर अल्लाह के नेक बंदों के लिए अल्लाह का हुक्म सबसे आसान रास्ता होता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने रब की रज़ा के लिए अपना इरादा मजबूत कर लिया। वो जानते थे कि वो अपने इख्तियार से कुछ नहीं कर रहे, बल्कि इस मालिक का हुक्म पूरा कर रहे हैं जिसने उन्हें जिंदगी अता की, नबुव्वत अता की और इज्जत अता फरमाई। इसी कैफियत को कुरान करीम ने बयान फरमाया कि जब दोनों ने अल्लाह के हुक्म को कबूल कर लिया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को पेशानी के बिल लिटा दिया, तो इस वक्त अल्लाह ताला की तरफ से पुकार आई, एक आवाज आई, ए इब्राहीम, तुमने ख्वाब को सच्चा कर दिखाया। ये अल्लाह ताला की तरफ से अपने खलील के लिए अजीम कामयाबी का आलन था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम रुक गए, उनके हाथ रुक गए, उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो जान गए कि अल्लाह ताला को हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का खून मतलूब नहीं था, बल्कि अल्लाह ताला उनके दिल का इम्तिहान नून ले रहा था। अल्लाह देखना चाहता था कि क्या मेरा बंदा अपनी सबसे महबूब चीज भी मेरी रजा के लिए पेश कर सकता है। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस इम्तिहान में कामयाब हो चुके थे। फिर अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से एक अजीम कुर्बानी का इंतजाम फरमाया। एक मेंढा हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बदले कुर्बानी के लिए पेश किया गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। उनका दिल खुशी, आजिज़ी और शुक्रगुजारी से भर गया। वो लम्हा सिर्फ एक बेटे के बच जाने का लम्हा नहीं था, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए एक अजीम पैगाम था कि अल्लाह ताला बंदों के ज़ाहिर को नहीं बल्कि उनके दिलों के अखालिस को देखता है। अगर दिल में सच्ची मोहब्बत, फरमाबरदारी और अल्लाह पर यकीन हो तो अल्लाह ताला मुश्किल तरीन हालिफलत में भी आसानी पैदा फरमा देता है। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम भी अल्लाह ताला की इस रहमत पर शुक्रगुजार हुए। वो जानते थे कि जिंदगी भी अल्लाह की अता है और मौत भी इसी के इख्तियार में है। इंसान का असल मकाम यह है कि वो हर हाल में अपने रब के फैसले पर राजी रहे। इस वाक़ये के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का मकाम और भी बुलंद हो गया। अल्लाह ताला ने इनकी कुर्बानी को ऐसा मकाम अता फरमाया कि हर साल दुनिया भर के मुसलमान ईद अल-फित्र के मौके पर कुर्बानी करते हैं और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की संत को याद करते हैं। लेकिन कुर्बानी का असल मकसद सिर्फ जानवर ज़बह करना नहीं है। कुर्बानी का असल मतलब है कि इंसान अपने दिल से तकब्बुर, हसद, नफरत, नाफरमानी और दुनिया की ऐसी मोहब्बत को निकाल दे जो इस हलिल्लाह से दूर करती है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हमें सिखाया कि अल्लाह की मोहब्बत के सामने कोई चीज़ बड़ी नहीं। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने हमें सिखाया कि वो औलद भी अगर अल्लाह की राह में सब्र और फरमाबरदारी इख्तियार करे तो वो अल्लाह की खास बंदों में शामिल हो जाती है। इस अजीम वाक़ये के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में एक और बड़ा मरहला आने वाला था। अल्लाह ताला ने उन्हें एक और अजीम जिम्मेदारी अता फरमाई थी जिसका ताल्लुक एक मुक़द्दस घर की तामीर से था। वक्त गुजरा और अल्लाह ताला का हुक्म आया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम मिलकर एक ऐसी जगह पर काम करें जहां आने वाली नस्लें अल्लाह की इबादत के लिए जमा होंगी। वो मकाम था जहां अल्लाह का मुक़द्दस घर तामीर होना था। मगर इस तामीर के दौरान भी कई आजमाइशें, दुआएं और अजीम वाक़यात पेश आने वाले थे। और अगले बाब में हम देखेंगे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर किस तरह खाना कबा की तामीर की और इस दौरान उन्होंने उम्मत मुस्लिमा के लिए कौन सी अजीम दुआएं मांगे। पिछले बाब में हमने देखा कि अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की अजीम कुर्बानी को कबूल फरमाया। एक ऐसा इम्तिहान जिसमें एक बाप ने अपनी सबसे कीमती मोहब्बत अल्लाह के सुपुर्द कर दी और एक बेटे ने अल्लाह की रज़ा के लिए अपने आप को पेश कर दिया। अल्लाह ताला ने उनके अखालिस को कबूल फरमाया और इस कुर्बानी को क़यामत तक के लिए यादगार बना दिया। लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का मकसद सिर्फ एक इम्तिहान में कामयाबी हासिल करना नहीं था, बल्कि अल्लाह ताला ने उन्हें इंसानियत की रहनुमाई के लिए कई अजीम जिम्मेदारियां अता फरमाई थीं। कुर्बानी के इस अजीम वाक़ये के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में एक नया मरहला शुरू हुआ। एक दिन अल्लाह ताला की तरफ से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म माल के वो इस मकाम पर एक घर तामीर करें जहां अल्लाह
की इबादत की जाए और जहां दुनिया भर के लोग अल्लाह के सामने झुकने के लिए आए। ये वही मुक़द्दस मकाम था जहां हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से इबादत का ताल्लुक बयान किया जाता है, मगर वक्त गुजरने के साथ वहां दोबारा तामीर की ज़रूरत पेश आई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म को खुशी से कबूल किया। उन्होंने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को साथ लिया और इस मुक़द्दस काम के लिए तैयार हो गए। ये एक अजीब मंजर था, वही बाप और बेटा जिन्होंने कुछ अरसा पहले अल्लाह के हुक्म पर अपनी सबसे बड़ी कुर्बानी पेश की थी, अब अल्लाह के घर की तामीर के लिए पत्थर उठा रहे थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पत्थर अलती, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम उन्हें तरतीब देते। कभी दोनों खामोशी से काम करते और कभी अल्लाह का जिक्र करते। उनके दिल दुनियावी शोहरत के ख्याल से खाली थे, न कोई तारीफ की ख्वाहिश थी, न किसी इनाम की तलब। उनका मकसद सिर्फ एक था, अल्लाह राजी हो जाए। काम के दौरान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से दुआएं भी करते जाते थे। वो दुआ करते, ए हमारे रब, हमसे ये खिदमत कबूल फरमा, बेशक तो ही सब कुछ सुनने वाल जाने वाल है। ये दुआ हमें सिखाती है कि नेक अमल करने के बाद भी इंसान को अपने अमल पर गुरूर नहीं करना चाहिए, बल्कि अल्लाह से कबूलियत मांगनी चाहिए। अक्सर इंसान छोटा सा नेक काम करके समझता है कि इसने बहुत कुछ कर लिया, मगर अल्लाह के नेक बंदों का तरीका यह था कि वो बड़े से बड़ा अमल करने के बाद भी आजिज़ी इख्तियार करते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जानते थे कि अमल की कदर सिर्फ इसकी ज़ाहिरी शक्ल से नहीं होती, बल्कि इसके पीछे मौजूद नियत से होती है। अगर नियत खालिस हो तो छोटा अमल भी अल्लाह के यहाँ बड़ा हो जाता है, और अगर नियत में दिखावा शामिल हो तो बड़ा अमल भी बेफायदा हो सकता है। खाना कबा की तामीर के दौरान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को सिर्फ पत्थर उठाना नहीं सिखा रहे थे, बल्कि उन्हें ईमान खालिस और अल्लाह की खिदमत का रास्ता भी सिखा रहे थे। वो चाहते थे कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम आने वाली नस्लों के लिए नेकी की मिसाल बने।